السلام علیکم، جی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں صبا شہزاد اور میں ہوں ماجد علی خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے پنجاب اسمبلی میں آج ووٹنگ ہوگی۔ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کی طرف سے اسپیکر چودھری پرویز الہی امیدوار ہیں، جبکہ اپوزیشن اتحاد کی طرف سے وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے حمزہ شہباز پرویز الہی کا مقابلہ کریں گے۔ مزید تفصیلات عباس نقوی کی اس رپورٹ میں۔ عدالت کے حکم کے مطابق ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن کرائیں گے۔ وزیر اعلیٰ بننے کے لیے 371 ارکان کے ایوان میں 186 ارکان کی حمایت حاصل کرنا ضروری ہے، جس کے لیے فریقین پورا زور لگا رہے ہیں۔ اس وقت پنجاب اسمبلی میں حکومتی اتحاد میں تحریک انصاف کی 183 اور مسلم لیگ کاف کی 10 نشستیں ہیں۔ اپوزیشن میں مسلم لیگ نون کے پاس 165، پیپلز پارٹی کی 7 نشستیں ہیں، راہ حق پارٹی کا 1، جبکہ 2 آزاد ارکان بھی اپوزیشن اتحاد میں شامل ہیں۔ ملک کے سب سے بڑے صوبے کی حکمرانی کے لیے جوڑ توڑ عروج پر پہنچ گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کو تحریک انصاف کے علیم اور کھوکر گروپوں پر مشتمل تقریباً 30 ارکان کے باغی گروپ کی حمایت حاصل ہے، جس کے بعد حمزہ شہباز کے حامیوں کی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی ہے۔ پنجاب کے منجھے ہوئے سیاست دان چودھری پرویز الہی بکھری ہوئی تحریک انصاف کو اکٹھا کر رہے ہیں، جبکہ ان کا دعویٰ ہے کہ خود مسلم لیگ نون کے کئی ارکان الیکشن کے روز انہیں ووٹ دیں گے۔ عباس نقوی، جی ٹی وی، لاہور۔ نئے اسپیکر قومی اسمبلی کے انتخاب کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا۔ اتحادی حکومت کے مشترکہ امیدوار راجہ پرویز اشرف کا نیا اسپیکر قومی اسمبلی بننے کا قوی امکان ہے۔ ان کے مقابلے میں کسی امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے۔ قومی اسمبلی کے نئے اسپیکر کا باضابطہ انتخاب آج کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی منظور ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حکومتی اراکین کو ایوان میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ حکومت کے مشترکہ امیدوار راجہ پرویز اشرف نئے اسپیکر قومی اسمبلی ہوں گے۔ ان کے مقابلے میں کسی امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے نوٹیفیکیشن اور آرڈر آف دی ڈے کے مطابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف 159 اراکین نے عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی تھی۔ یہ تحریک ایوان میں منظوری کے لیے پیش ہوگی اور منظوری کے بعد عدم اعتماد کی قرارداد ایوان میں پیش کی جائے گی۔ اس قرارداد کی منظوری کے ساتھ ہی ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا۔ اس سے پہلے قائم مقام اسپیکر قاسم سوری نے قومی اسمبلی اجلاس 22 اپریل کو طلب کیا تھا، لیکن قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے شیڈول میں تبدیلی کر دی، جس کی وجہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تحریک تھی اور اس پر 7 دن کے اندر ووٹنگ لازمی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا راول چوک فلائی اوور کا دورہ، متعلقہ افسران کی جاری ترقیاتی کاموں پر بریفنگ۔ وزیر اعظم منصوبہ بروقت مکمل نہ ہونے پر برہم، افسران کو جھاڑ پلا دی، کہا کمپنی کی نااہلی کی وجہ سے منصوبہ کام مکمل نہیں ہو سکا۔ ماضی میں اس طرح کے منصوبے 6 مہینے میں مکمل کیے گئے، کمپنی کو نااہلی کے باعث بلیک لسٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ کراچی میں پی ٹی آئی آج پاور شو کرے گی۔ مزار قائد کے قریب جلسے کی تیاریاں جاری ہیں۔ یہ پاکستان کی حقیقی خود مختاری، حقیقی جمہوریت کی جنگ ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا ٹویٹر پیغام لکھا، لڑائی امریکہ کی طرف سے اکسائی گئی تبدیلی کے خلاف ہے۔ کراچی جلسے میں آنے والوں سے درخواست ہے کہ قومی پرچم ساتھ لے کر آئیں۔ تو دوسری جانب کراچی ٹریفک پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے دوران باغ جناح کے اطراف ٹریفک پلان ترتیب دے دیا ہے۔ دوران جگہ جناح گراؤنڈ کی طرف آنے والے ٹریفک کو اطراف کی سڑکوں پر موڑ دیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے لیے آپ کو بتائیں کہ گراؤنڈ اور چائنا گراؤنڈ اور ایکسائز چورنگی پارکنگ، نشتر پارک اور مزار قائد وی آئی پی گیٹ پر بھی پارکنگ انتظامات۔ دوران جلسہ جمشید روڈ اور 3 ہٹی سے نمائش جانے والی ٹریفک کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جمشید روڈ سے آنے والی ٹریفک کو جیل فلائی اوور کی طرف موڑا جائے گا، جبکہ شارع قائدین سے آنے والی ٹریفک کو خالد بن ولید روڈ کی طرف، یونیورسٹی روڈ سے آنے والی ٹریفک کو شہید ملت روڈ پر موڑا جائے گا۔ اسی طرح جیل چورنگی سے نمائش آنے والی ٹریفک کو سولجر بازار کی طرف گامزن کریں گے۔ ریگل سے نیو امیجنا روڈ کو کوریڈور 3 تک عام افراد کے لیے سڑک بند رہے گی۔ صدر سے یونیورسٹی روڈ پر سفر کرنے والے شہری شارع فیصل کو استعمال کر سکیں گے، جبکہ ناظم آباد اور 3 ہٹی سے آنے والی پبلک بسوں کو لسبیلا سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جی ہاں، کراچی ٹریفک پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے دوران باغ جناح کے اطراف ٹریفک پلان ترتیب دے دیا ہے۔ دوران جگہ جناح گراؤنڈ کی طرف آنے والے ٹریفک کو اطراف کی سڑکوں پر موڑ دیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے جلسے کے لیے تائی کراچی گراؤنڈ،
चाइना ग्राउंड और एक्साइज चौरंगी पार्किंग, नश्तर पार्क और मज़ार कायद VIP गेट पर भी पार्किंग इंतजाम दौरान जलसा। जमशेद रोड और 3 हट्टी से नुमाइश जाने वाली ट्रैफिक को आगे जाने की इजाज़त नहीं होगी। जमशेद रोड से आने वाली ट्रैफिक को जेल फ्लाई ओवर की तरफ मोड़ दिया जाएगा। तब्दीली सरकार के खात्मे की खुशी में कराची में 3 तलवार चौरंगी पर पीपल्स पार्टी ने जश्न नजात मुनक्किद किया। जश्न में सियासी कारकुनान समेत रहनुमाओं और सिंध हुकूमत की अहम शख्सियात ने शिरकत की। जश्न में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी तरानों पर कारकुनान रक्स करते रहे। इंसानियत की एक और मसीहा जहान फानी से कूच कर गईं। ईदी फाउंडेशन की सरबरा बिल्किस ईदी कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गईं। बिल्किस ईदी साहिबा की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर न्यू मीमन मस्जिद खारादर में अदा की जाएगी। बिल्किस ईदी की तदफीन मेवा शाह कब्रिस्तान में होगी। इंसानियत की एक और मसीहा जहान फ़ानी से कूच कर गईं। ईदी फाउंडेशन की सरबराह बिल्किस ईदी कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गईं। हुकूमत पाकिस्तान ने बिल्किस ईदी को शानदार समाजी खिदमात पर हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा, जबकि रूसी हुकूमत की जानिब से स्विट्ज़रलैंड पीस प्राइज़ भी दिया गया। पाकिस्तान एक और अजीम इंसान दोस्त हस्ती से महरूम हो गया। मारूफ समाजी कारकुन अब्दुलसत्तार ईदी की बेवा बिल्किस ईदी कराची में इंतकाल कर गईं। बिल्किस ईदी 1 माह से निजी अस्पताल में जेर इलाज थी। बिल्किस ईदी पाकिस्तान के सबसे बड़े समाजी तंजीम के सरबराह अब्दुलसत्तार ईदी के इंतकाल के बाद ईदी फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी थी। वो 14 अगस्त 1947 को भारतीय रियासत गुजरात के शहर बांटवा में पैदा हुई और फिर फैमिली के साथ हिजरत करके कराची आ बसी। अब्दुलसत्तार ईदी से उनकी शादी 1966 में हुई और 50 बरस की रफाकत 2016 में ईदी साहब के इंतकाल तक जारी रही। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें शानदार समाजी खिदमात पर हिलाल इम्तियाज से नवाजा। उन्हें रूसी हुकूमत ने लिनन पीस प्राइज दिया। बिल्किस ईदी ने सोगवारों में फैसल ईदी, कुबरा ईदी, कुतुब ईदी और अलमास ईदी को छोड़ा है। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की समरी मुस्तरद कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी जाएं। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का हुक्म दे दिया है। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में ₹21.5 और डीजल की कीमत में ₹51.30 इजाफे की तजवीज़ हुकूमत को भिजवाई थी। वज़ारत खजाना की नोटिफिकेशन के मुताबिक अगले 15 दिन तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। पिछली हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का गलत फैसला किया। हुकूमत फी लीटर डीजल पर ₹51 जेब से अदा कर रही है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 72 अरब रुपए माहाना पेट्रोलियम सब्सिडी देना पड़ रही है। कीमतें ना बढ़ाई तो 30 अरब रुपए का इजाफी कर्ज लेना पड़ेगा। पिछली हुकूमत के आखिरी दिनों में एक फैसला किया गया, पेट्रोल की कीमत 149 रुपये होगी, डीजल की कीमत 145 रुपये होगी और ये कीमत 30 जून तक बरकरार रहेगी। इस फैसले की कोई काबीना की अप्रूवल नहीं है। इस मद में पिछले 15 दिनों में 35 अरब रुपया अदा किया है। इस फैसले का असर हर महीने 72 अरब रुपए का है कि अगर 30 जून तक हम इस मामले को बरकरार रखते हैं, 2.5 महीने बाकी हैं, 15 दिन गुजर गए, इसमें हमें 240 अरब रुपए अपनी जेब से देना होंगे, यानी 2400 करोड़ रुपया हुकूमत पाकिस्तान अजाफी कर्जा लेकर अदा करेगी, क्योंकि इस पैसे की कोई रकम बजट में नहीं रखी गई। दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जो अपनी कीमत खरीद से कम सतह पर पेट्रोल बेचता हो या डीजल बेचता हो। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला ताहाल जारी है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $111.70 फी बैरल रिकॉर्ड की गई, जबकि अमरीकी WTI क्रूड ऑयल $160 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा देखने में आया। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने सफेद पोश तबके का जीना मुहाल कर दिया है। इस्लामाबाद में मजदूर तबका दिन भर खुले आसमान तले तपती धूप में मजदूरी के इंतजार में बैठा रहता है, मगर इस तबके पर किसी हुक्मरान की नजर नहीं पड़ती। मजीद बता रही हैं बिस्मा रफीक। जी बिस्मा, आगाह कीजिएगा।
हाँ जी बिल्कुल, बात की जाए महंगाई की तो महंगाई का सुनामी तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। गरीब आवाम तो महंगाई की चक्की में फिस रही है, लेकिन उसके साथ साथ मजदूर तबका जो है वो भी महंगाई में काफ़ी पिस चुका है। इस वक्त मैं इस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर मजदूरों की जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद देखने को नज़र आती है और आए रोज़ जो है वो मजदूर यहाँ पर आकर फुटपाथ पर बैठ जाते हैं, लेकिन इनको कोई काम नहीं दिया, इनको कोई मजदूरी नहीं दी गई। मैंने इनसे बात की तो इनका ये कहना है कि महंगाई की वजह से इनको काफ़ी परेशानी का सामना है, जबकि सुबह सवेरे से यहाँ पर मौजूद होते हैं और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए यहाँ पर मजदूरी का इंतजार करते हैं, लेकिन इनको मजदूरी नहीं दी जाती। मेरे साथ इस वक्त एक मजदूर मौजूद है, मजीद गुफ्तगू करते हैं। सर, आप मुझे ये बताइएगा कि जैसे हालात जा रहे हैं, महंगाई आप देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ रही है, तो क्या आप अपने बच्चों का पेट पाल सकते हैं आराम से? मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। ये 3 साल हमारे साथ वादे करके 3.5 साल इसने लगाए, ये करूँगा वो करूँगा, हर बात पे यू टर्न ले रहा था और ये आया, इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब और आगे पता नहीं, अगर सुबह का भूला हुआ शाम को आ जाए तो क्या बात है, उसका कुछ नहीं कह सकता। वरना 3-3.5 साल हर चीज़ को ऊपर ले गया, गाड़ियों के किराए बढ़ गए, बिजली का बिल बढ़ गया, हर चीज़, बिजली होती नहीं है वो बिल आ रहे 3-4 5-5 10-10 हज़ार रुपये बिल आ रहे और एक बल्ब पे भी 10,000 बिल कहाँ से भरेंगे? रोटी पैदा करेंगे या बिल देंगे? हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना इनकी गुफ्तगू से आपको मालूम हो रहा होगा कि मजदूर तबका जो है वो इस वक्त काफ़ी परेशानी में मुब्तला है और परेशानी का सामना कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जब मजदूरी ही नहीं है तो इनके जो हुकूमत की जानिब से लगाए गए जो टैक्सेस है और जितनी भी खरीदो फरोख्त है, इस हवाले से हम कैसे अपनी जेब से जो है वो देंगे, इसके साथ अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। लिहाजा मजदूर तबका जो है वो इस हवाले से काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा है और इनका हुकूमत से यही अपील है कि हुकूमत का इन मजदूर तबके के हवाले से भी उनको सोचना चाहिए, रिलीफ पैकेज देना चाहिए ताकि इस बढ़ती हुई महंगाई का मुकाबला कर सकें। जी। जबकि दूसरी जानब शिकारपुर के अवाम ने नई हुकूमत से तवक्कुआत वाबस्ता कर ली। कुछ लोगों ने किया नई हुकूमत पर भरोसा और कुछ अब भी तब्दीली सरकार के मद्दा हैं। देखते हैं अब्दुल हकीम जतोई की ये रिपोर्ट। तब्दीली सरकार की हुकूमत जाने और डॉलर की कीमत में कमी होने के बाद महंगाई के मारे शिकारपुर के अवाम की नई कायम करदा हुकूमत से नई उमंगें भी जाग उठी हैं। अभी तक तो कोई कमी नहीं हुई है, लेकिन उम्मीदें हैं इस हुकूमत से, क्योंकि इसके आने से ही 10 रुपये डॉलर कम हुआ है। अभी गरीब आवाम को यही चाहिए कि ये चीनी, आटा और घी जो है ना ये कम कर दें, इनका रेट कम कर दें, यही आवाम के लिए रिलीफ है। ये जो अभी नया हुकूमत आया है, इसमें उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला जो है ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। अभी 2 दिन तो उनको हुकूमत मिली है, उसको कुछ टाइम तो छोड़े ना, उनको कोई टाइम काम तो करने का मिलेगा, इंशाल्लाह आवाम को रिलीफ मिलेगा। कुछ लोगों ने किया भरोसा नई हुकूमत पर तो कुछ लोग आज भी तब्दीली सरकार के मदा हैं। अब इमरान खान जो है वो किसी के ना आगे बिका है ना झुका है। इमरान खान सच्चा लीडर है। देखना यह है कि क्या पीडीएम की ताकत से बनी हुकूमत दौरे इक़्तिदार में अवाम को रिलीफ फराहम करने में कामयाब होगी या अवाम से किए वायदे मजाक साबित होंगे। कैमरा टीम के हमरा हकीम जतोई, GTV न्यूज़, शिकारपुर। रुख करेंगे कोयटा का। कोयटा में आवारा कुत्तों की भरमार से इंसानी जिंदगियों को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। जिला इंतजामिया की मुबैना गफलत से रिहायशी इलाकों में कुत्तों के गौल नजर आते हैं। मजीद जानते अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैजान खान से। जी हाँ बिल्कुल, कोयटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों ने अपने ठिकाने बनाए हुए हैं। अगर मैं कोयटा शहर के नवाई इलाकों की बात करूँ, जिनमें कोयटा का नवा किली, सब्ज़र रोड, सिरकी रोड, सेटेलाइट टाउन, सरियाब रोड और जो दीगर इलाके शामिल हैं, वहाँ पर आवारा कुत्ते इतने ज़्यादा हो गए कि वहाँ के इलाका मकीनों में खौफ हरास फैल रहा है। इलाका मकीनों का यही कहना है कि आवारा कुत्तों की वजह से वो अपने बच्चों को घरों से बाहर ना खेलने के लिए भेज सकते हैं, ना ही किसी काम की गर्ज से उन्हें खदशा रहता है कि आवारा कुत्ते जो है वो इनके बच्चों को काट लें। कोयटा शहर में जिला इंतजामिया मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने माजी में कोयटा शहर में जो आवारा कुत्ते उनको तल्फ करने का सिलसिला शुरू किया था, लेकिन वो रुक सा गया। शहरियों ने इंतजामिया से अपील की है कि कोयटा शहर में जो आवारा कुत्तों को तल्फ करने का सिलसिला एक मरतबा फिर से शुरू किया जाए ताकि कोयटा शहर से जो आवारा कुत्ते हैं वो कम हो सकें। जी। मस्जिदुल हराम में अल्लाह अकबर की सदाएं जब आती हैं तो रूहानी सुरूर का बाइस बन जाती हैं। मस्जिदुल हराम में जो ऑडियो सिस्टम इस्तेमाल होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम है, जिसमें 1-2 नहीं 7,500 स्पीकर लगे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर सदाएं जब कानों में आती हैं तो एक रूहानी सुरूर दे जाती हैं। स्पीकर्स पर मुश्तमिल मस्जिद हराम का साउंड सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा सूती निजाम है। ये स्पीकर मस्जिद हराम में आजान और नमाज की आवाज को हरम मक्की के अंदर और बाहर मुंतकिल करते हैं। मस्जिद हराम के ऑपरेशन और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के मुताबिक मस्जिद में ऑडियो सिस्टम दुनिया का सबसे जदीद और सबसे बड़ा साउंड सिस्टम है। ये निजाम इंतहाई एहतियात और महारत के साथ तरतीब दिया गया है। जगह की जरूरत के
पेश नजर जदीद सूती आलात नस्ब किए गए हैं और इस निज़ाम की रोजाना की बुनियाद पर देखभाल और इंतजाम आला तरीन सतह पर तरबियत याफ्ता माहिरीन के जरिए किया जाता है। मस्जिद हराम के साउंड सिस्टम को एक मरकजी ऑपरेशनल कंट्रोल रूम से कंट्रोल किया जाता है। इस जदीद ऑडियो सिस्टम के जरिए बैतुल्लाह में आने वाले तमाम ज़ायरीन तक अल्लाह अकबर की सदाएं पहुँचती हैं, जो यकीनन ता क़यामत पहुँचती रहेंगी। ISPR के मुताबिक हमले में 7 फौजी शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। पाकिस्तान ने अफगान नाज़िमुल उमूर से वाक़े पर शदीद एहतजाज किया है। सरहद पार से दुश्मनों का फौजी काफिले पर हमला। शिमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों ने पाक फौज के काफिले पर हमला किया। ISPR के मुताबिक हमले में 7 फौजी जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में हवलदार तारिक यूसुफ, सिपाही सलेमान वक्कास, सिपाही जुनेद अली, सिपाही एजाज हुसैन, सिपाही वक्कार अहमद, सिपाही मोहम्मद जवाद अमीर और सिपाही अरशद अली शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग में 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक फौजी काफिले पर हमला शिमाली वजीरिस्तान के इलाके शाम में हुआ। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी की कार्रवाई पर पाकिस्तान ने अफगान नाज़िमुल उमूर से एहतजाज किया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत से इलाके को महफूज बनाने और सरहदी राब्तों को मौसर बनाने का मुतालबा किया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की जानिब से अफगान हुकूमत से कहा गया है कि 12 दरखास्तों के बावजूद अफगान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इश्तियाल अंगेजी बढ़ रही है, जो इंतहाई तशवीशनाक और बाहमी ताउन के रूह के खिलाफ है। पाकिस्तान सरहद पार से ऐसे वाक़यात की शदीद मजम्मत करता है। तवक्को है कि फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सऊदी अरब के सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट ने बुहेरिया अहमर से एक हैरत अंगेज वीडियो जारी की है, जिसमें बुहेरिया अहमर में रहने वाली मुनफरिद डॉल्फिन का एक ग्रुप दिखाया गया है। इस वीडियो में डॉल्फिन के बच्चों को अपनी माँ के हमरा पानी में तैरता देखा जा सकता है। मजहबी रवादारी की मिसाल जर्मन फुटबॉल लीग में मुसलमान फुटबॉलर के इफ्तार के लिए मैच को रोक दिया गया। ये तारीखी वाक़या बुंडेसलीगा में ऑक्सबर्ग और मेंस क्लब के दरमियान जारी मैच के दूसरे हाफ में पेश आया। सूरज गुरूब होते ही रेफरी ने मुसलमान फुटबॉलर मूसा को बुलाया और इफ्तार के लिए मैच को रोक दिया। मूसा को मुखालिफ टीम के गोल कीपर ने पानी और जूस पिलाया। मुस्लिम फुटबॉलर ने इफ्तार की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मैच फिक्सिंग का नासूर अब कराची के लोकल फुटबॉल में भी दाखिल हो गया है। नया नाज़िमाबाद फुटबॉल टूर्नामेंट के मुंतज़मीन ने मैच फिक्सिंग का एतराफ़ कर लिया है। नेशनल शाहीन और बाबल स्पोर्ट्स के दरमियान नूर मैच में नेशनल शाहीन ने 3 के मुकाबले में 6 गोल से फतह हासिल की। इस नतीजे की वजह से इस ग्रुप की अहम टीम बर्मा आफरीदी को सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर होना पड़ा। बाद अज़ां फिक्सिंग की निशानदही डिस्ट्रिक्ट मलीर फुटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी शाहिद ताज और मधु क्लब के सदर जाहिद हुसैन के सख्त रद्द अमल के बाद टूर्नामेंट कमेटी ने फिक्सिंग के शवाहिद को मद्देनजर रखते हुए नेशनल शाहीन को टूर्नामेंट से खारिज कर दिया। खपरो शहर में माह रमज़ान में रिवायती नाइट क्रिकेट मैच की सरगर्मियां उरूज पर हैं। समाजी तंजीम की जानिब से डिग्री कॉलेज ग्राउंड में 4 रोज़ा नाइट टैप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं तैमूर खुदादाद। खिपरो के समाजी तंजीम FKR की जानिब से खिपरो के लोगों की तफरी के लिए शानदार 4 रोजा टैप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट लगाया गया। इस टूर्नामेंट में डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के 12 बेहतरीन टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का इफ्तिदा काजी फरहान राजड़ फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी काजी शोएब राजड़ ने रिबन काट कर किया। मैच का आगाज कौमी तराने से हुआ। इस मौके पर काजी शोएब राजड़ का कहना था, बस ये इंशाल्लाह हर साल होती रहेंगी टूर्नामेंट्स, और हमें और भी काफी प्लान्स हैं यहाँ के बारे में। जो यूथ है यहाँ की, जो नौजवान हैं, उनको इनकरेज करने के लिए जैसे क्या कहते हैं सेहतमंद एक्टिविटीज़ होनी चाहिए यहाँ पर। क्रिकेट हो गई, फुटबॉल हो गया, और इंशाल्लाह पढ़ाई के हिसाब से हम लाइब्रेरी भी इंशाल्लाह खोलेंगे। इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 17 अप्रैल को खेला जाएगा। फाइनल के फातह टीम को मोटरसाइकिल इनाम में दिया जाएगा। कैमरामैन शिराज अली के साथ तैमूर खुदादा, GTV न्यूज़, खिपरो। रावलपिंडी गुजर खान में पहली मरतबा मारखोर रमजान का फ्लड लाइट की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब हुई, जिसमें पाकिस्तान के नामवर टेस्ट क्रिकेटर्स और मायनाज बल्लेबाज अब्दुल रज़ाक, हसन रजा, राना नबीदुल हसन और इमरान फरहत ने शिरकत करके इवेंट को 4 चांद लगा दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं अबरार हुसैन स्तोरी।
रावलपिंडी गुजर खान में GTV के इश्तराक से मारखोर स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के ज़ेरे एहतमाम मारखोर रमजान कप का आगाज हो गया। इवेंट में गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और कश्मीर समेत चारों सूबों की 16 बेहतरीन टीमें शरीक हैं। इफ्तिताही मुकाबला गिलगित बल्तिस्तान मारखोर टीम और गुजर खान स्टार्स में हुआ। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने मारखोर इंतजामिया को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मारखोर गिलगित बल्तिस्तान का उभरता हुआ ब्रांड है। 16 टीमें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, 32 मैचेस हैं। मैं समझता हूँ क्रिकेट की प्रमोशन के लिए मारखोर प्राइवेट का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और पाकिस्तान के हर शहर में इस तरह के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होंगे जिससे क्रिकेट को फ़रोग़ मिलेगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर राना नवीदुल हसन और हसन रजा ने कहा कि यंगस्टर्स के लिए पैगाम है अच्छा खेलें ताकि मुस्तकबिल में मुल्क की नुमाइंदगी करें। ये ग्रास रूट लेवल पे बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव है प्लेयरों के लिए कि उनको मौका मिले यहाँ पर और इतने खूबसूरत तरीन ग्राउंड में खेलें और परफॉर्म करें। इसमें PSL के प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, काफ़ी प्लेयर्स जो हैं परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। एंटायर टीम को प्राइम वैली को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि 2022 में ये टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं। फर्स्ट इवन मारखोर का डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो भी गिलगित बल्तिस्तान के प्लेयर्स हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। GTV से गुफ्तगू करते हुए मारखोर स्पोर्ट्स के रशीद आलम ने कहा कि गुजर खान के बाद इस इवेंट को गिलगित बल्तिस्तान में करेंगे। जहाँ इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक 16 टीमें शरीक हैं और डेली जहाँ 2 मैचेस होंगे और ये कई TV चैनलों में लाइव दिखाया जाएगा और गिलगित बल्तिस्तान में इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद हम गिलगित बल्तिस्तान लीग कराने जा रहे हैं। तकरीब में अहम सियासी और समाजी शख्सियात और अहले इलाका की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन अंजम डार के साथ इब्रार हुसैन अस्तोरी, GTV रावलपिंडी। कोयटा में फरोख्त होने वाले अफगानी कुलचे काबुल की सौगात है। ये सौगात कोयटा में भी बेहद मकबूल हैं। रिपोर्ट कर रही है बुशरा कमर। ये तैयारी हो रही है गर्मा गर्म खस्ता और ताज़े अफगानी कुलचे की, जो खालिस दूध, घी, अंडे, चीनी और मैदे से तैयार किए जाते हैं। कुलचे के मावे को पूरा दिन हाथ की मदद से रगड़ाई के बाद इसकी 8 से 10 मुख्तलिफ किस्में बनाई जाती हैं। कुलचा फरोश रमजान के साथ ईद के लिए भी माल तैयार करने में मसरूफ हैं। हम दूध भी डालते हैं, जायकेदार बनाते हैं, एक चीज़ बनाते हैं, लोगों को पसंद आते हैं। इस वजह से जो है लोग से ज़्यादा लोग जो है इसको शहर में बहुत पसंद करते हैं। कोई सालन नहीं खाते तो उसी की जगह पे ना पराठा हो गया और रोगनी हो गई खाते हैं। लकड़ी और गैस की अंगीठी में कुलचा 5 से 10 मिनट में पककर तैयार हो जाता है। इसे खाने के शौकीन अफराद दूर दूर से खिंचे चले आते हैं। ये असल की ये बात है, इसका बिस्किट बहुत खूबसूरत बिस्कुट है, सही चीज़ इस्तेमाल कर रहा है कि इसकी सही है, बहुत बेहतरीन बिस्कुट बना रहे हैं। हम लोग ईद पे भी खाते हैं, ऐसे भी रमज़ान में भी ले जाते हैं। ये कोयटे का ज़बरदस्त मशहूर बिस्कुट है, कोयटे का रहने वाला ज़बरदस्त बिस्कुट है, बेहतरीन। ये पठान लोग जो सब पसंद कर रहा है, ये पठान लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं क्योंकि ये रमज़ान में खाता है, ये शाम लोग भी ईद के लिए भी लोग जाएगा। ये हम लोग ज़बरदस्त चीज़ है, पठान ये खाता है, ये छोटे बिस्कुट नहीं खाता, ये खाता है हम लोग खुद। कुलचे की रोगानी, खताई, उज़्बकई और ब्रेंजी भट्टी में, जबकि खजूर तेल में तलकर तैयार की जाती है। अपने मुनफरिद जायके की वजह से अफगानी कुलचा पूरे पाकिस्तान में फरोख्त के लिए भिजवाया जाता है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़ कोयटा। रावलपिंडी में सजेगा क्रिकेट ग्राउंड। फैसल टाउन रावलपिंडी में मीसम रमजान T20 कप में नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलते हुए नजर आएंगे, जहां बेहतरीन खेल पेश करने वालों को KPL खेलने का मौका मिलेगा। मीसम T20 कप की इफ्तिताही तकरीब में क्रिकेटर सलमान इरशाद और अरशद इकबाल समेत नामवर शख्सियात ने शिरकत की। हैदर शराजी की रिपोर्ट। रावलपिंडी फैसल टाउन मीसम क्रिकेट ग्राउंड में मीसम रमजान T20 कप की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। रमजानुल मुबारक T20 कप में नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ग्राउंड में परफॉर्म करते नजर आएंगे। इफ्तिताही तकरीब में इंटरनेशनल क्रिकेटर अरशद इकबाल और PSL के हीरो और उभरते हुए नौजवान फास्ट बॉलर सुलमान इरशाद शरीक हुए। सुलमान इरशाद का कहना था कि इस टूर्नामेंट से नौजवानों को परफॉर्म करने का भरपूर मौका मिलेगा। पिंडी के लड़कों को ये बहुत बड़ा यहाँ पे चांस है क्योंकि आजकल मीडिया इतना आम है, यहाँ पे परफॉर्म करें तो इंशाल्लाह आगे KPL आ रही है, PSL आ रही है, तो उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्रिकेटर अरशद इकबाल का कहना था मेहनत करें और खुद पर यकीन रखें। इफ्तिताही तकरीब में रावलाकोट हॉक्स की जानिब से टूर्नामेंट के 2 बेहतरीन खिलाड़ियों को KPL टीम में शामिल करने का ऐलान किया गया। आप परफॉर्मेंस करें, इधर
मैं इंशाल्लाह इस स्टेज से आपको यकीन दिलाता हूँ कि इधर से मैं इंशाल्लाह 1 प्लेयर या 2 प्लेयर रावलाकोट हाउस में इंशाल्लाह खिलाऊंगा। मीसम कप इफ्तिताही तकरीब के मौका पर मिंबर खैबर पख्तूनख्वा क्रिकेट एसोसिएशन के नुमाइंदे, कश्मीर प्रीमियर लीग फ्रेंचाइज और माया नाज खिलाड़ियों ने शिरकत की और क्लब क्रिकेट को आगे बढ़ाने के अज़म का इजहार करते हुए वाजे किया कि मीसम कप में नौजवानों को अपनी सलाहियतें दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा। कैमरामैन अंजुम डार के साथ हैदर शेराजी, GTV न्यूज, रावलपिंडी। लाहौर DHA रहबर में रैम्बो स्टोर की 7वीं आउटलेट की लॉन्चिंग तकरीब हुई। तकरीब में CEO रैम्बो स्टोर इमरान सलीमी और साथ ही साथ सेनेटर तहरीक इंसाफ एजाज चौधरी और दीगर ने शिरकत की। रैम्बो स्टोर की 7वीं आउटलेट का इफ्तिताह तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी ने इमरान सलीमी के साथ फीता काट कर किया। सारिफीन 3 दिन तक 10% फ्लैट ऑफ के साथ खरीदो फरोख्त कर सकते हैं और साथ ही स्टोर के इफ्तिताह के पहले रोज सारिफीन की बढ़ती तादाद ने शॉपिंग की। CEO इमरान सलीमी का कहना था कि उन्होंने 2008 में रैम्बो का आगाज किया था। आज अल्लाह के फजल से 7वीं आउटलेट बना ली है। हम 7वां स्टोर ओपन कर रहे हैं और इसमें हम एक तो रेगुलर हमारी प्राइसेस अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कम होती हैं मार्केट से, और इस स्पेसिफिक स्टोर पे अब जब हम ओपनिंग कर रहे हैं तो 3 दिन के लिए हमने लोगों को 10% डिस्काउंट दिया हुआ है ताकि लोग ज़ाहिर है इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। सर्विस लॉन्ग मार्च टायर ने चांग लॉन्ग मार्च लिमिटेड और पाकिस्तान सर्विस ग्रुप के इश्तराक से पाकिस्तान के पहले ऑयल स्टेमल ट्रक बस प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में सदर पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान ने बरामदात में नुमाया किरदार अदा किया है। सदर आरिफ अलवी ने ऑयल स्टेमल ट्रक बस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनका कहना था कि पाकिस्तान और चीन के ताउन से 300 मिलियन का प्रोजेक्ट SLM का टायर तैयार करेगा जो कि दुनिया के बेहतरीन टायर्स का मुकाबला करेगा। इस मौके पर कंपनी के CEO उमर सईद का कहना था कि सर्विस ग्रुप का हमेशा बेहतरीन अशिया की बरामद को यकीन रखता है और मुस्तकबिल में भी मंजर आम नाम पर नुमाया किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।